Dear students and all the physics loving friends, you are welcome in my physics course which is on my YouTube channel Online Physics for You. So you are all welcome. Today I am going to start a new course, new physics course for class 11th for all boards like CBSE, UP board and all other state boards students. So class 11th physics, and firstly I am discussing the course structure. So your course for class 11th is divided into 10 units, and you can watch these 10 units written on blackboard. So here these are units, 10 units, and these are units name, and this column is for chapters. So this column is for chapters, and these are marks. So your 100 marks is divided. 100 marks are divided into two parts. One part for theory work and other for practical work. So theory consists of 70 marks, and your practical work consists of 30 marks. So totally 100. So this is the overview of the course. Unit 1, Physical World and Measurement. This is from your chapter 1 and 2, NCERT chapter 1 and chapter 2. And this is second unit, Kinematics, and chapter 3 and chapter 4 of your NCERT book. And this is unit 3rd, Laws of Motion, and this is chapter 5. Next, unit 4, Work, Energy and Power, and this is chapter 6, unit 5, Motion of System of Particles and Rigid Body, and this is chapter 7. And next, unit 6, Gravitation, and this is chapter 8. So your whole syllabus consists of two books, part 1 and part 2. So up to here your part 1 is completed. The part 1 is completed. Then unit 6, Properties of Bulk Matter, and this is chapter 9, chapter 10 and chapter 11. Next, unit 8, Thermodynamics, chapter 12. Then 9, Kinetic Theory of Gases, chapter 13. And last, unit 10, Oscillation and Waves, chapter 14 and chapter 15. So marks are divided according to unit 1st, 2nd and 3 are combined, and this is 23 marks. And unit 4, 5, 6 are combined to give a weightage of 17 marks. And similarly 7, 8, 9 units for 20 marks, and unit 10, chapter 14 and 15, and this consists 10 marks. So whole syllabus is 23 plus 17 plus 20 plus 10. This is 70 marks. So your question paper, theory question paper will be of 70 marks. I am starting your chapter 1. So chapter 1 is Physical World. आपका चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन फिजिक्स फॉर यू इसको आप सभी सब्सक्राइब करें, और आफ्टर सब्सक्राइबिंग एक बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज, आने वाली क्लास के वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आशा करता हूं कि आपने ये सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस किया होगा, तो आप आगे इस प्लेनेट अर्थ पर जब से मानव आया है, तो मानव की टेंडेंसी रही है कि जितनी भी इस प्रकृति में, इस नेचर में होने वाली घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं ने इस मानव को आश्चर्यचकित किया है। तो उन घटनाओं के बारे में बहुत सारी घटनाएं हमें आश्चर्यचकित करती हैं,
जैसे जब रात का समय होता है तो आपने बहुत सारी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखा होगा और उनको चमकते हुए आकाश में देखा होगा। आकाश की तरफ यदि हम अपनी आंख करें तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे ऐसी बॉडीज हैं, ऐसे बॉडीज हैं जो बहुत तेजी से चमकती हैं, कुछ कम तेजी से चमकती हैं। और कुछ स्टार्स देखे होंगे, स्टार्स भी ट्विंकलिंग करते नजर आते हैं। और दिन और रात, डे और नाइट का रिपीटिशन, डे के बाद नाइट है, नाइट के बाद फिर डे है, फिर नाइट है, ये रिपीटिशन चलता रहता है। और जो सीजन्स हैं उनमें भी एनुअल साइकिल आपने देखा होगा, उनका जो सीक्वेंस है, उनका जो ऑर्डर है वो कभी भी ब्रेक नहीं होता है। जैसे सर्दियों के बाद अब गर्मियां हैं तो हमेशा सर्दियों के बाद गर्मियां ही आएंगी, तो ये सीजन चलता रहता है, एक एनुअल साइकिल है जो चलती रहती है, ये भी हमने महसूस किया होगा। इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, ल्यूनार इक्लिप्स, इनके बारे में भी आप सभी जानते हैं। द टाइड्स, द रेनबो, दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ वंडर। आपने देखा होगा बारिश के बाद आकाश में रेनबो को बनते हुए। सो दीज ऑल आर सोर्सेज ऑफ वंडर फॉर व्हाट इज फिजिक्स। तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं एक वो बेसिक टर्म्स पर आता हूँ, विच इज साइंस। साइंस क्लास 3rd 4th ऑनवर्ड हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते आ रहे हैं, साइंस को। अभी आपने क्लास 10th के एग्जाम दिए हैं तो वहां भी एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा होगा और इसका एग्जाम भी देकर आप सभी विद्यार्थी आ रहे होंगे। सो व्हाट इज साइंस? तो साइंस, दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ब साइंटिया, फ्रॉम लैटिन वर्ब साइंटिया। So this Latin verb mean to know, जानना। तो जैसा अभी मैंने बताया कि जितने भी घटनाएं हमारे प्रकृति में घटती हैं, नेचर में जो भी घटनाएं घटती हैं, उन सभी को जानना ही साइंस है। तो इसका मीनिंग ही, साइंटिया का मीनिंग ही होता है टू नो, जानना। और यदि इसका संस्कृत लैंग्वेज का जो वर्ड है, इसके इक्विवेलेंट वर्ड है, उसको कहते हैं हम विज्ञान। क्या कहते हैं उसको? विज्ञान। दिस इज संस्कृत वर्ड। दिस इज संस्कृत वर्ड विज्ञान। Science is a systematic attempt to understand natural phenomena। एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। और जितना भी हम डिटेल में जा सकें उतना डीपली डिटेल में जाकर। विच इज यूज फॉर प्रेडिक्शन, जो प्रेडिक्शन के लिए यूज किया जाता है, टू मॉडिफाई द फिनोमेना, और उस फिनोमेना को मॉडिफिकेशन के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस। और इन अदर लैंग्वेज, क्योंकि जो नेचर की सीक्रेट्स हैं उन सीक्रेट्स को ये रिवील करता है, तो आई कैन ऑल्सो से टू रिवील द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। तो नेचर के जो सीक्रेट्स हैं उन सभी को रिवील करने का जो टूल है उसको हम कहते हैं साइंस। नेक्स्ट, साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। So here it is prediction। तो prediction, अनुमान, जो हम अनुमान लगाते हैं, तो उसका भी साइंस में एक विशेष प्लेस है। क्योंकि सबसे पहले हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं और प्रिडिक्शन के बाद ही कुछ एक्सपेरिमेंटली कोशिश करते हैं कि हमारा प्रिडिक्शन सही है या गलत है। तो जो भी हम प्रिडिक्ट करते हैं नेचुरल फिनोमेना के बारे में, उसको ऑब्जर्वेशन
और एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन उसका होना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रिडिक्शन ले रहा हूं एंड दैट प्रिडिक्शन वाज डन बाय साइंटिस्ट निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस। and Copernicus. So this was a great scientist। और कॉपरनिकस ने एक मॉडल दिया था, एक प्रेडिक्शन किया था जिसको आज हम बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो इस थ्योरी में क्या बताया था कॉपरनिकस ने? कॉपरनिकस ने बताया था कि सेंटर पर सन है, सभी जितने भी प्लेनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट्स हैं, तो दीज ऑल 8 प्लेनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो इस तरह से ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में ये प्लेनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये बताया था कोपरनिकस ने। बट दिस वाज अ प्रेडिक्शन। तो एक प्रेडिक्शन था जिसको वेरीफाई किया था केपलर ने, जोहानेस केपलर ने इसको वेरीफाई किया था। used the extensive data collected by टाइको ब्रे। एक फिलोसफर थे। तो टाइको ब्रे ने अपनी नेक्ड आई से विदाउट एनी टेलीस्कोप और इस नेचर में प्लैनेट्स के मोशन, सैटेलाइट के मोशन को देखकर कुछ डेटा कलेक्ट किया था। एंड इनकी डेथ के बाद उनके असिस्टेंट थे जोहानेस केपलर, और केपलर ने उस एक्सटेंसिव डेटा का यूज किया था। किस लिए यूज किया था? जो कोपरनिकस ने मॉडल दिया था इसको वेरीफाई करने के लिए, हेलियोसेंट्रिक मॉडल को वेरीफाई करने के लिए। तो जब केपलर ने डेटा यूज करके और कुछ रिजल्ट आउट किया, तो उस रिजल्ट में बताया गया कि सन इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। बट कोपरनिकस ने बताया था कि ये जो ऑर्बिट होती है सर्कुलर होती हैं। बट केपलर ने क्या बताया था, कैसी ऑर्बिट प्रिडिक्ट की थी? जोहानेस केपलर जो प्रिडिक्ट ने डेटा से जो ऑब्जर्वेशन था वो बताया था दैट ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स आर इलिप्टिकल। कैसी ऑर्बिट्स हैं वो? इलिप्टिकल, नॉट सर्कुलर। तो इस तरह से कुछ प्रेडिक्शन होता है और प्रेडिक्शन के बाद फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, कुछ डेटा कलेक्ट किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं और उस ऑब्जर्वेशन के बाद एक थ्योरी आती है। बट एक बात मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि साइंस में कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती है। तो इस प्रकार अभी मैंने बताया कि इस तरह साइंस में थ्योरी डेवलप होती हैं और ये जो थ्योरी है जो नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड होती हैं, तो इनको बोलते हैं नेचुरल साइंसेज। नेचर से रिलेटेड साइंस। तो इस नेचुरल साइंस के कई सारे पार्ट हैं एंड वन पार्ट ऑफ this natural science is physics. One part of this natural science is physics. So this is a part of this natural science
and other parts are chemistry, biology. These are other natural sciences. So one part is physics. So now I am defining physics. तो ये जो वर्ड है फिजिक्स, ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है. ग्रीक लैंग्वेज से आया है और ये वर्ड था फ्यूसिस. तो फ्यूसिस का मतलब होता है द मीन ऑफ फ्यूसिस इज नेचर. मीन ऑफ फ्यूसिस इज नेचर. तो क्योंकि ये नेचुरल साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज का एक पार्ट है और फ्यूसिस नेचर का इक्विवेलेंट है, तो इसलिए इसका नाम हुआ फिजिक्स. तो अब मैं इसको डिफाइन करता हूं फिजिक्स को. नेचर के बेसिक लॉज हैं, उन सभी लॉ को जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उस ब्रांच को बोल देते हैं फिजिक्स. So physics, what is physics? Physics is a study of basic laws of nature और उनकी applicability, different phenomena and their manifestation in different natural phenomena. So this is physics. So in physics we have theory and experiments. Theory and experiments. तो दोनों ही थ्योरी भी और एक्सपेरिमेंट्स दोनों ही साथ साथ चलते हैं. कभी थ्योरी से कुछ नया एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और कभी एक्सपेरिमेंट से नई नई थ्योरी डेवलप होती हैं. फॉर एग्जांपल मैं आता हूं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग. रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग. तो आपको याद होगा एक कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में एक गोल्ड फॉइल लिया था, बहुत थिन गोल्ड फॉइल, लगभग 10⁻⁷ मीटर थिकनेस का एक गोल्ड फॉइल लिया था और उसमें 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 MeV एंड लार्जर 6-7 MeV के अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया था. तो बॉम्बार्ड करने के बाद जब वहां से स्कैटरिंग हुए थे तो उन अल्फा पार्टिकल, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल को कलेक्ट किया था ZNS स्क्रीन से, सिंटिलेशन से देखा था. तो उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट ने, तो एक्सपेरिमेंट के डिटेल तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इस एक्सपेरिमेंट ने एक नई थ्योरी को जन्म दिया और उस नई थ्योरी को हम आज पढ़ते हैं एटॉमिक मॉडल. नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ फिजिक्स. So broadly we can divide it into two parts. One, classical physics, classical mechanics, and this is quantum physics. देखिए जो क्लासिकल फिजिक्स है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटोनियन फिजिक्स. न्यूटोनियन फिजिक्स. तो ये जो फिजिक्स है न्यूटोनियन फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, ये न्यूटन के लॉ पर बेस्ड है. जो न्यूटन ने लॉ दिए थे उन लॉ पर ये फिजिक्स बेस्ड है. बट ये फिजिक्स बहुत छोटे लेवल पर, मीन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स के एटॉमिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर, ये लेवल पर फेल हो जाता है. तो तब हम एक न्यू टाइप का फिजिक्स उन फिनोमेना को एक्सप्लेन के लिए पढ़ते हैं, एटॉमिक लेवल के लिए और मॉलिक्यूलर लेवल के लिए. So this is for atomic and molecular level. Atomic and molecular. एटम की फिजिक्स और मॉलिक्यूल की फिजिक्स जो फिनोमेना है उसको हम जो एक्सप्लेन करते हैं वो क्वांटम फिजिक्स में एक्सप्लेन करते हैं. तो जब हम न्यूटन के लॉ की बात करते हैं तो वहां पर आता है फोर्स, बल. तो डेली लाइफ में हमने महसूस किया है कि हम भी ऑब्जेक्ट्स पर बल लगाते हैं. यदि अभी मैंने बोर्ड को साफ किया तो डस्टर पर मैंने बल लगाया, और यदि मैं जब चौक से यहाँ लिखता हूं तो तब भी बल लगाता हूं. मैंने चौक को पकड़ा हुआ है तब भी मैंने यहाँ बल लगाया हुआ है.
अपने थंब और फिंगर के बीच, तभी ये रुका हुआ है। बल ना लगाने की स्थिति में ये नीचे चला जाएगा। और नीचे भी क्यों जाएगा? क्योंकि हमारी जो धरती है, हमारा जो अर्थ है, वो भी इस पर एक बल, एक फोर्स अप्लाई करती है। तो हम खूब अवेयर हैं इस टर्म फोर्स से, इस टर्म बल से। तो जितने भी बल हम अपने आसपास देखते हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है और उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। So these are 4 forces, fundamental forces in nature. First one is gravitational. Gravitational force. Second one is electromagnetic force. Electromagnetic force. Third one is strong nuclear force. And fourth one is weak nuclear force. वन बाय वन अब हम इनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force. This gravitational force was discovered by great scientist Newton. तो न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया था और न्यूटन ने बताया था कि इस यूनिवर्स में, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, इस यूनिवर्स में जितने भी मासेज हैं, 2 मासेज एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। So these are 2 masses m1, m2. So m1 exerts a force on m2 and m2 exerts a force on m1. m1 m2 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, m2 m1 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। और ये सब हम जानते भी हैं कि यदि इस चौक को मैं यहाँ से छोड़ दूं तो अर्थ और चौक के बीच एक फोर्स अप्लाई होगा, तो उस फोर्स से चौक अर्थ की तरफ मूव करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हम ऊपर से छोड़ दें तो अर्थ उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। तो इस ही फोर्स के इफेक्ट से कोई भी बॉडी, ईच बॉडी मूव करती है नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। ये इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म दिया था जो हम आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और जो फर्स्ट पार्ट है इसका, चैप्टर 8 है, उसमें हम डिटेल में इस ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस करेंगे। दिस फोर्स हैज ओनली अट्रैक्टिव नेचर। दिस फोर्स हैज ओनली अट्रैक्टिव नेचर। केवल अट्रैक्शन का होता है, ये रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। तो this is important point about this force. It is weakest force in nature. नेचर का सबसे जो वीक फोर्स है वो यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। Electromagnetic force. So this electromagnetic force is due to charges. So if I have 2 charges Q1 and Q2, कोई भी 2 चार्जेज हैं Q1 और Q2, तो ये दोनों चार्जेज एक दूसरे पर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं।
Q1 एग्जर्ट करेगा Q2 पर, Q2 एग्जर्ट करेगा Q1 पर, तो उस फोर्स को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। और यदि ये चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दे, यदि ये चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दे, तो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसी मूविंग चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सकता है, वहां उसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से अलग नहीं है, ये हमारे वैज्ञानिक इन दोनों ब्रांचेस का यूनिफिकेशन कर चुके हैं, तो इन दोनों का कंबाइंड नेम हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके लिए भी एक फॉर्मूला मैं लिखता हूं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R। तो एक मैथमेटिकल टर्म है जो हम क्लास 12 में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। But this force, electromagnetic force, is much stronger than this gravitational force। और यदि मैं दो प्रोटॉन के पेयर लूं, तो प्रोटॉन में आप सभी जानते हो मास भी होता है और चार्ज भी होता है, तो यहाँ मासेज की वजह से एक फोर्स होगा जिसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों के बीच एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। और नेक्स्ट, क्योंकि इन पर चार्जेस भी हैं प्रोटॉन पर, तो इनके बीच एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई हो रहा होगा, जिसको मैंने लिखा है Fe। बट दिस Fe इज लार्जर देन Fg and this is nearly 10 to the power 36 times stronger than gravitational force। So electric force is 10 to the power 36 times stronger than gravitational force between proton and proton। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने डिस्कस किया, उसके बाद डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, और मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है नेचर का, इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और दो प्रोटॉन के बीच ये 10 to the power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी मैंने और डिस्कस की, ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। यदि दो लाइक चार्जेज हैं तो लाइक चार्जेज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड फंडामेंटल फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जितने भी हमारे नेचुरल फिनोमेना होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फिनोमेना होते हैं, उन दोनों में ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये एक पानी का बोतल है और ये मैंने अपने हाथ पर यहाँ रखा हुआ है, तो अर्थ इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा, और क्योंकि ये रेस्ट में है तो इस पर नेट फोर्स का वैल्यू 0 होगा। तो इस पर जो मेरा हैंड है इसका सरफेस और जो बोतल का सरफेस है बॉटम है, उन दोनों सरफेसेस के बीच भी एक फोर्स लगा हुआ है, जिस फोर्स का नाम कोई बताएगा क्या होगा? इस फोर्स का नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि बोतल में भी चार्जेज हैं, न्यूट्रल है बट चार्जेज हैं, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से मेरे हाथ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर दें कि पॉजिटिव के सामने और नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो वो रिपल्सिव फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा जो बैलेंस करता है इसके वेट को, ग्रेविटेशनल फोर्स को। सो नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो ये जो दोनों फोर्सेज हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये अप्लाई होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में और न्यूक्लियर पार्टिकल्स में, जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं,
केवल बहुत छोटे रेंज में एप्लीकेबल होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर रेंज में अप्लाई होते हैं केवल न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस एक एटम का बहुत टाइनी पार्ट है और लगभग 10⁵ टाइम्स स्मॉलर होता है एटॉमिक साइज से। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ। सो दिस इज न्यूक्लियस, बहुत टाइनी पार्ट होता है बट मैंने मैग्नीफाई किया न्यूक्लियस। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो Pn तो कोई भी दो प्रोटॉन, ये दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ये है, एक प्रोटॉन ये है, और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो इनके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। और इन दोनों के बीच क्योंकि मासेज भी होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। और अभी मैंने डिस्कस किया कि 10⁻30 टाइम्स 10⁻36 टाइम्स वीकर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम यहाँ छोड़ते हैं तो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे अप्लाई करेगा, ये इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे अप्लाई करेगा, और दोनों ही फ्लाई ऑफ हो जाने चाहिए। तो जो न्यूक्लियस है वो कैसा होना चाहिए, अनस्टेबल। लेकिन न्यूक्लियस अनस्टेबल नहीं होता, न्यूक्लियस स्टेबल होता है। तो इसका मतलब है इन दोनों के, और वो इन दोनों के बीच एक फोर्स अप्लाई है और उस फोर्स को कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये वो फोर्स है जिसने रिपल्सन को भी ओवरकम किया हुआ है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उस रिपल्सन से भी ज्यादा होगा। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स is stronger than electromagnetic force by 100 टाइम्स। तो कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। नेक्स्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स, लास्ट फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स। So this is last one, weak nuclear force. So weak nuclear force, the weak nuclear force appears only in certain nuclear processes such as beta decay of nucleus. It is a nuclear phenomena, beta decay is a nuclear phenomena जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रिनो, ये दोनों पार्टिकल बाहर आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब बाहर आते हैं न्यूक्लियस से और दोनों अलग अलग होते हैं तो किसी ना किसी पार्टिकल में डिसइंटीग्रेशन हुआ है। तो डिसइंटीग्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो आई डिस्कस दीज 4 fundamental forces of nature and this completes your chapter 1 physical world. In next class I will start chapter 2.